Sir, welcome to you and everyone for this platform. It is my pride, privilege to tell regarding Dr. Rajesh Kumar Gupta ji, who is with us to enlighten us regarding cancer and different things. And in my team, we have our doctors group, then our consultants from our side. And let me to introduce sir. Sir is the founder of Neeraj Cancer Foundation, Holistic Counseling, and Sima Dental College and Hospital, Sima Medicare Health Services, and the Neeraj Group of Luxury Hotels, Palaces and Resorts, the Neeraj Real Estate and Builders. So overall, Recording is on. brief introduction, sir is very eminent and have much more experience on the management of cancers. And the Swiss University platform, actually, we are very much interested for cancer management. So still now, after establishment of our hospital since last 3 years, we are unable to get any single cancer case because our doctors they feel whether we'll able to treat, we'll able to manage the cancer, and different dilemmas are there. So in the meanwhile, we got your reference, and you will be one big asset for us. And with your advice, with your direction, we have a desire to manage cancer patients in our Sri Sri Ayurveda Hospital. Sri Sri Ayurveda Hospital is established at Kotak, which is very nearer to the capital Bhubaneswar, just 30 kilometers from airport. And we have 100 bed Ayurveda hospital, and it is under Sri Sri University. Sri Sri University, there are multiple programs are there. Out of that, Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research Hospital is one. Under that, 100 bedded Ayurveda hospital is there. We have around 45 Ayurvedic doctors working here, and we have completed just the first year and second just two batches completed, and we are progressed, and we have started our PhD courses, and in the first year we have taken 23 PhD scholars, and we are in a way of development, and we hope with your direction, with your help and cooperation, we'll prosper more and more. Thank you, sir. I welcome Thank you you in so this much, sir. platform. Thank you, thank you, thank you. I'm glad. I'm happy. Please, sir. We have our Nikhilesh Sinoyji. He is the administrative officer, Thank you. and he's managing overall Namaskar, sir. activities of the Namaskar. hospital and college. Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. Namaskar, sir. Nice to have you. Nice to have you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So whatever best support from Shishya Ayurveda Hospital, Odisha, we will extend our hands to promote this and develop this cancer center, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, I would like to request your lecture. Please give your introduction, another thing, because I am very brief regarding you, your experience, your expertise, so everyone will be able to know. आप इधर आ जाओ ना मुझे खड़ी दिख रही है खड़ी खड़ी दिख रही आप इधर खड़ी इसको वो इधर करो इधर आ जाओ हो गया ठीक है थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग थैंक यू सो मच सर Thank you, सर sir. जय गुरुदेव Jai Guru. जय गुरुदेव जय गुरुदेव Jai Gurudev. Jai Gurudev. थैंक यू माय गॉड थैंक यू माय होल यूनिवर्स थैंक यू माय दादा दादी थैंक यू माय मम्मी पापा थैंक यू माय वाइफ सीमा मैम हेवनली सोल थैंक यू माय वाइफ जयता मैम my family man friend Sunny ma'am and thank you my whole universe again thank you my whole universe सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरा बहुत 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 धन्यवाद
सबसे पहले मैं मोस्ट रेस्पेक्टेड सर, डिवाइन सोल, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे जी का मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी डॉक्टर्स का, सभी फैकल्टी मेंबर्स का, सभी प्यारे मेडिकल स्टूडेंट्स का, सारे फैमिली मेंबर्स का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सब अपना समय निकाल करके उनका प्यार देने के लिए मैं हाथ जोड़ करके सबका मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज लीवर डे है, तो आज हम लीवर पे ही बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि लीवर डे पर हम जब लीवर पे बात करेंगे तो सबसे पहले लीवर सोरासिस ही एक बीमारी है और उसके बाद लीवर कैंसर है। तो हमारा लीवर सोरासिस और लीवर कैंसर है। अब उसका जो लीवर की जो बीमारियां हैं, लीवर सोरासिस है, लीवर कैंसर है। अब ये तो सबको पता है कि सब जानते हैं कि लीवर सोरासिस क्यों होता है, लीवर कैंसर क्यों होता है, ये भी सबको पता है कि ओवर ड्रिंक्स और अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा लेने पर जो है हमें लीवर सोरासिस होता है, लीवर कैंसर होता है। उसकी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी जो है ओवर नेगेटिव थिंकिंग्स हैं, ओवर नेवर थिंकिंग की वजह से जो है All are requested to mute because sir is talking. So ओवर थिंकिंग की वजह से जो है लीवर कैंसर होता है। जितनी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग को बार बार सोचना, बार बार उसको रिपीट करना, मन में विचारों में करना, ठीक है, उससे भी लीवर कैंसर होता है। तो ये तो सारी जानकारियाँ आप सब लोगों का है ही, सब लोग आप जानते हैं। आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं सर? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? yes sir, it is audible. राइट सर, थैंक यू सर। सर अब हम बात करते हैं लीवर सोरासिस पर और लीवर कैंसर के ऊपर। अब लीवर कैंसर पे हो या लीवर सोरासिस हो, उसका आपको पता ही है कि लीवर सोरासिस का कोई भी एलोपैथिक में भी कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है और बाद में जो है वो लीवर कैंसर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बात की जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो भी मेडिसिन्स हैं, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन्स हों, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हों या होम्योपैथिक मेडिसिन्स हों, ये सारी मेडिसिन जो हैं इंसान की बनाई हुई हैं। ये अपने एलोपैथिक मेडिसिन्स अपना काम करती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स अपना काम करती हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होता है। ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन अपना काम करती हैं, उनका भी साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होता है, ठीक है। जनरली जो है हम आयुर्वेद के अंदर जो लीवर कैंसर के जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं, और लीवर कैंसर के पेशेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, और उसमें जो है हम श्री जी का ही एक मेडिसिन आती है, लिव ऑन टैबलेट आती है, और सिरप आता है गुलमहार अर्का के नाम से, उसको भी हम बहुत यूज़ करते हैं। हालांकि हमने Li52DS को भी यूज़ किया, सिरप भी यूज़ किया है, लेकिन चूंकि आजकल ये मेडिसिन हम श्री रविशंकर की यूज़ करते हैं, जिसमें टैबलेट का नाम है लिव ऑन और सिरप है गुलमहार अर्का, जिससे हमने देखा है कि उनकी भूख बढ़ती है, लीवर ठीक होता है, और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत नहीं रहती, उनका मोशन भी साफ रहता है। तो इसके मैंने काफ़ी फ़ायदे नज़र मैंने देखे हैं। लेकिन इसमें लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने देखा है कि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर हम अपने ऊपर काम करें, अपने आप को समय दें, तो मैजिकली काम होता है। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अब जो मैं आप बताऊँगा, कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, और लगभग मैंने 150 सेलिब्रिटीज़, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन द अर्थ, मैंने उन पर रिसर्च करी है, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला है, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मुझे मौका मिला है,
हालांकि वो सब कुछ जो भी मैंने उन लोगों से सीखा है वो सब जो है श्री श्री जो हमारे गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर जी, उससे वो उनके विचारों से बहुत मैच करता है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सफलता हो, ठीक है, मंत्र तो एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसको अपनी अपनी जिंदगी में होता है। मेन तो आर्ट ऑफ लिविंग ही है, सब गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का सीखा हुआ है। 20 साल से मैं सीखता आ रहा हूँ, ठीक है। वो उन्हीं चीज़ों को मैं अपने शब्दों में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम कैंसर को कैसे मुक्त हो सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वी डू नॉट ट्रीट कैंसर, वी क्योर द कैंसर, वी क्योर द कैंसर। कैंसर कंप्लीट क्योर हो सकता है, होता है। अब हम बात करेंगे कि थिंकिंग के ऊपर कि ठीक है, अल्कोहल पीने से जो कैंसर होता है या ओवर थिंकिंग होने से जो कैंसर होता है, तो मेरा ये कहना है कि हम खाने पीने से इतने बीमार नहीं पड़ते जितने हम बीमार पड़ते हैं नेगेटिव थिंकिंग से। तो नेगेटिव थिंकिंग से जो बीमारी होती हैं वो इनक्योरेबल होती हैं। जो बीमारियां खाने पीने से होती हैं वो सारी क्योरेबल हैं। उससे क्या होगा? खांसी जुकाम होगा, पेट दर्द होगा, 2 दिन दवाई खाएंगे, 3 दिन दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो बीमारी नेगेटिव थिंकिंग से होगी वो इनक्योरेबल है, उसका इलाज तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। जो दवाई स्टार्ट होगी वो दवाई तो फिर लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, वो ठीक नहीं होती। लेकिन मैंने अभी ये कहा कि जो 3 पैथी हमारी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, इन तीनों मेडिसिन को बनाने वाले हम ह्यूमन हैं, हम डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं। लेकिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी गॉड ने हमारे अंदर पहले से फिक्स कर रखी है, और जो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं उसके मैन्युफैक्चर तो स्वयं गॉड है, ब्रह्मा है और यूनिवर्स है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिनको कैंसर है, और हालांकि वो बहुत भाग्यशाली होंगे कि अगर उनके ऑपरेशन वगैरह नहीं हुए और वाइफ से नहीं हुए तो और भी भाग्यशाली होंगे, वो जल्दी क्योर हो सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर वो अपने थॉट्स पे काम करें, अपने विचारों पे काम करें। तो मेरा मानना ये है कि जो मैंने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन तो अपना काम करती हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें है हमारा थिंकिंग। हम सोचते क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हम क्या सोचते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लव योर सेल्फ। अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लव होल यूनिवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लव टू एनिमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब हम पूरे ब्रह्मांड को लव करते हैं, ब्रह्मांड को प्यार करते हैं, तब हमारी बॉडी में एंडोर्फिन निकलता है। बस यह है कि लव अनकंडीशनल होना चाहिए। लव योर सेल्फ, लव होल यूनिवर्स, और उसके बाद है लव टू एनिमी। जो हमारे 2-4 दुश्मन होते हैं, अगर हम उनको भी लव करें, उनको भी रेस्पेक्ट दें, उनको भी ग्रैटिट्यूड करें, तो हमारी बॉडी के अंदर डोपामाइन निकलता है। और यही जो मेन है जहाँ से कैंसर आता है। कैंसर कहाँ से आता है? हमारे जो एनिमीज़ हैं, जिनके बारे में हम ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, कैंसर जनरेट वहीं होता है। तो हमें रूट पे ही काम करना पड़ेगा कि हम अगर रूट पे काम करेंगे तो नेचुरली है कि कैंसर से निजात मिल सकती है, कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, कैंसर हमेशा के लिए क्योर हो सकता है, और हम अपने आगे 10, 20 साल, 30 साल अपनी पूरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं सिर्फ अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स को चेंज करके, अपने थॉट्स को बदलाव करके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर इस बात को दोबारा बोलना चाहूँगा कि एक तो ऑक्सीटोसिन है जो एक हैप्पी हार्मोन है, दूसरा हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन है जो तब निकलता है जब हम पूरे ब्रह्मांड को प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, पूरे रिलेटिव्स को प्यार करते हैं, फ्रेंड्स को प्यार करते हैं, तो एंडोर्फिन निकलता है। जब हम अपने एनिमीज़ को प्यार करते हैं,
अपने दुश्मनों को भी प्यार करते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामाइन निकलता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही हमारी बॉडी में डोपामाइन निकलेगा तो ये कहा जाता है, ये साइंस है कि वो हमारी बॉडी में अमृत है। और जब डोपामाइन निकलेगा तो कैंसर रहने का सवाल ही नहीं उठता बॉडी के अंदर, चाहे वो ट्यूमर हो, वो कुछ भी हो, उसको ठीक होना ही होगा। अब ये 3 हार्मोन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन हैं और इनका हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। ये एक हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यही इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके मैन्युफैक्चर तो स्वयं गॉड हैं। लेकिन आप चूँकि डॉक्टर्स हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, सैकड़ों हार्मोन का जन्म होता है, बहुत हार्मोन निकलता है। तो मैंने मेन हार्मोन्स के नाम बताए जो काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है और हमारा जो है थॉट प्रोसेस चेंज होता है और हम बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सोचते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं और ग्रैटिट्यूड करते हैं, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो 200% फ़ायदा होता है, 2000% फ़ायदा होते हुए मैंने खुद अपने पेशेंटों को देखा है और वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योर्ड हैं, पूरे हेल्थी लाइफ को जी रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। मतलब पूरी इसमें थेरापीज़ हैं जिसमें जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हो गई, वो अपना भी काम करती हैं। उसके बाद उसके अंदर हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग करते हैं, उनके थॉट्स पे काम करते हैं, उनके विचारों पे काम करते हैं। हम उनके साथ 4-4 घंटे बैठ करके हम उनके साथ बातचीत करके उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाते हैं कि जब सोचना है तो बड़ा सोचना है, जब सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है, लव पर सोचना है, ग्रैटिट्यूड पर सोचना है, रेस्पेक्ट पे सोचना है, तो ये चीज़ काम करेगी क्योंकि हमारी उस वक्त बॉडी में हैप्पी हार्मोन बनता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाने पीने से जो बीमारी होती हैं वो लगभग सब क्योरेबल है, लेकिन जो बीमारी थॉट से होंगी उनका कोई क्योर ब्रह्मांड में नहीं है। वो एक बार बीमारी लगेगी तो वो फिर जो है ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, या तो फिर वो व्यक्ति आर्ट ऑफ लिविंग में आ जाए, वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाए तो उसको उन बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो पूरे पृथ्वी पे, पूरे संसार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ है तो सब कुछ है। ये बात सही है कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बीमारी किसी को होने वाली है, क्योंकि उसने नेगेटिव वर्ड में रहना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया। इन स्पाइट ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स वो खुश कैसे रहे, उसने खुश रहना सीख लिया। जब मैं गुरुदेव के साथ फ्लाइट में जा रहा था तो मुझे 2.5 घंटे गुरुजी से बातचीत करने का मौका मिला। मैंने गुरुदेव से क्वेश्चन पूछा कि जब चारों तरफ नेगेटिविटी हो, परिवार के सभी लोग नेगेटिव हों और मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकता हूँ? मैं उस नेगेटिव वर्ड में अपने आप को खुश कैसे रख सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को मैं खुश करूँ? तो गुरुदेव ने मुझे बहुत बढ़िया आंसर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सारा विश्व भी आपके अगेंस्ट हो जाए, सारे लोग भी आपके अगेंस्ट हो जाए, सारी सिचुएशन भी आपके अगेंस्ट हो जाए, घर वाले भी अगेंस्ट हो जाएं, तो आप ये मान लें कि आप एक डॉक्टर हैं, बाकी सब पेशेंट हैं। तो गुरुजी ने इतना बढ़िया आंसर दिया कि मुझे बताया कि जो भी घर में सिचुएशन होती है कि घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो जो है अगर उनसे हमारी नहीं बनती या जो भी खटपट रहती है, तो क्योंकि डॉक्टर का और पेशेंट का ये एक है कि पेशेंट चाहे कितना भी गुस्सा करे डॉक्टर पे, लेकिन डॉक्टर तो अपना लव, अपना कंपैशन, अपनी काइंडनेस उसको दिखाएगा ही ना, उसको प्यार करेगा ही। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। ये $1 बिलियन का एक आंसर था गुरुजी का कि घर में अगर 4 लोग हैं और उनसे हमारी नहीं बनती तो हमें ये मान लेना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ और वो 4 लोग जो घर में हैं वो पेशेंट हैं। तो मेरा व्यवहार चेंज होगा, मेरा थिंकिंग चेंज होगा, मेरा थॉट चेंज होगा और मैं बीमार पड़ने से बच जाऊँगा, मैं स्ट्रेस मूड में नहीं रहूँगा। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम था हैप्पियर देन गॉड। ये बुक मेरी वाइफ जैता मैम ने मुझे गिफ्ट करी थी। उसमें ये लिखा हुआ था, नेवर 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 कंप्लेंट, ओनली ग्रेटिट्यूड।
never complain, only gratitude. Never complain, only gratitude. उन्होंने कहा था कि इसको काट करके, इसको कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके, निकाल करके इसको अपने सब इम्पोर्टेंट जगह पे लगा लो कि कभी कंप्लेन पे मत जाओ, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करिए और एप्रिसिएशन करते रहिए, ठीक है। तो उसमें ये 3 बंदरों की बात भी याद आती है। महात्मा गांधी की जो 3 बंदर हैं, ठीक है, वो तो आर्ट ऑफ लिविंग की सबसे बड़ी स्टोरी है। जो 3 बंदर के बारे में सब लोग जानते सब लोग हैं, लेकिन जो उसको अपनाएंगे, महात्मा गांधी की जो 3 बंदर हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। वो भी एक आर्ट ऑफ लिविंग ही है। उस 3 बंदरों की कहानी आप सब लोग जानते हैं। अगर उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो नेचुरली हम हमेशा हैप्पी मूड में रहेंगे। क्योंकि जब मैंने इस पर रिसर्च करी कि नेवर कंप्लेंट, ओनली ग्रेटिट्यूड, तो मैं कहना चाहूँगा कि आए दिन हमारे पास शिकायतें होती हैं, आए दिन हम लोगों की बुराई करते हैं। जब देखो हम लोगों की बुराई करते हैं। हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तब भी हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं तब भी लोगों की बुराई कर रहे हैं, 4 लोग बैठते हैं हम तब भी बुराई करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लिया हम 6 लोग बैठे हैं, उसमें एक आदमी कंप्लेन कर रहा है, उसको शिकायत है, वो बुराई कर रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति उठ करके जाता है तब हम ही सब लोग मिल करके उस आदमी की बुराई करते हैं। तो बुराई के पीछे जो पड़ना है, ये एक इनवाइटिंग बैड एनर्जी इनटू आवर बॉडी। तो मैं सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने लैब से सीखा है, जो साइंस ने सिखाया है और जो मैंने इस पर रिसर्च करी है, वो ये मैंने देखा है कि जब हम किसी भी व्यक्ति की बुराई करते हैं और हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, हम किसी भी व्यक्ति की बुराई करते हैं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं तो हमारे जो अच्छे विचार हैं, जो मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, वो उस व्यक्ति को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और उसकी जो बुराइयाँ हैं वो मैं अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं इसलिए बीमार पड़ता हूँ क्योंकि मैं किसी की बुराई करता हूँ तो मैं अपनी अंदर जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं और उसकी जो बुराइयां हैं वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं। अगर आज हम शाम को जा कर के अगर हम ये स्वाध्याय करें कि हम कितने लोगों की बुराई करते हैं, हम जितने लोगों की बुराई करते हैं तो हम 90% ये पाएंगे कि वो सब स्वस्थ हैं, वो सब हेल्थी हैं। हम महीने में, 2 महीने में, हम 3 महीने में हम बीमार पड़ते हैं, कभी कुछ और दवाइयाँ खाते हैं। तो जो कंप्लेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, वो जो हमारे जो नेगेटिव विचार्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही हमको जो है नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारा कारोबार हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो स्टडी किया है और जो देखा है और जो मैंने गुरुजी को और सभी सेलिब्रिटीज़ को, जो सक्सेसफुल लोग हैं, हेल्थी हैं, और जो मैंने सुना है कि हम जिसकी भी बुराई करेंगे, किसी की भी बुराई करेंगे, हम उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर धारण करेंगे, अपने अंदर उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी और हम और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। जबकि जिसकी हम बुराई कर रहे हैं उसको हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहे हैं और वो हेल्थी हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहा है। आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक है, वो हेल्थ है। बीमार हम होते हैं, बीमार हम हो रहे हैं। ये आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, अगर हम ये आज शाम को बैठ कर स्वाध्याय करें कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें अपनी आत्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें अपनी आत्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए और वो हमें गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसमें टाइम लगता है, करीब 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन इमीडिएटली इसमें जो है आराम मिलता है। हम हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ तो सबसे बड़ी वेल्थ है। और मैं आपको आगे और बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ें कैंसर से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम कंप्लेन कर कर के अपने ब्रेन को एक डस्टबिन बनाते हैं, बाद में वो मस्कुलरी ट्रक बनता है। मस्कुलरी ट्रक इज ए कैंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी लीवर कैंसर के पेशेंट आते हैं या वो बॉडी में कोई भी कैंसर है जो आते हैं, तो हम लोग
उसका सबसे पहले मेंटल डिटॉक्स करते हैं। 4 से 5 घंटे हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनका मेंटल डिटॉक्स करते हैं। मेंटल डिटॉक्स के साथ साथ हम उनका बॉडी डिटॉक्स करते हैं और हम उनको 2 घंटे की वॉक, 2 घंटे की शाम को वॉक कराते हैं ओपन टू स्काई में, खुले आसमान में। हम ये सारी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब हम खुले आसमान में कराते हैं। और बहुत ही सिंपल खाना, सिंपल फूड हम जो है हम उनको देते हैं और उसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन काउंसलिंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करें, पेशेंट्स का के साथ में हम फॉलोअप करें, तो पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। उसमें लाफिंग थेरापी भी काम करती है। लाफिंग थेरापी का बहुत इम्पैक्ट है। उनके साथ पॉजिटिव बातें करना, उनके साथ समय बिताना, टाइम बिताना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हमने देखा है। और इससे जो है पेशेंट्स ठीक होता है, क्योर होता है और वो अपनी हेल्थी लाइफ जीता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता है। एक बार मुझे माउंट आबू में गेस्ट लेक्चर की तरह मैं इनवाइट किया गया था और ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। तो जब मैं लेक्चर के लिए जा रहा था तो मुझे, चूँकि मैं पहले ही निकल चुका था, तो वहाँ की जो हेड हैं, दादी माँ उनको बोलते थे और बोलते हैं, तो 97 ईयर्स ओल्ड वो थी। और मुझे पता लगा कि इन्होंने कभी जीवन में दवाई नहीं खाई और वो स्वस्थ थी और वो बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं उनके पास बैठ गया और जब मैंने उनसे बैठा, उनका आशीर्वाद लिया, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपकी हेल्थ का सीक्रेट क्या है, आपका हेल्थ का राज क्या है कि आपने कभी कोई दवाई नहीं खाई, आप स्वस्थ हैं, आप हेल्थी हैं। तो वो मुस्कुराई और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बताया और वो लग नहीं रही थी कि ये 97 ईयर्स ओल्ड हैं, इतनी ज़्यादा एज उनको लग भी नहीं रही थी, उनके चेहरे पे तेज था। तो उन्होंने सबसे अच्छी बात बताई कि पिता की जो प्रॉपर्टी है उस पे बच्चों का हक होता है, पिता की सारी प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक होता है। एक तो हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं और एक हमारा जो असली पिता है वो गॉड है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। भगवान राम हमारे पिता हैं, वो भगवान शिव हमारे पिता हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि गॉड हमारे पिता हैं, भगवान राम हमारे पिता हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी है। तो दादी माँ ने कहा कि जो उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी है उसमें क्या है कि भगवान राम की जो प्रॉपर्टी है वो है स्माइल, लाफ, ट्रूथ, पेशेंस, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स। ये सारी की सारी जो है भगवान राम की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर हम इसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और ये सीक्रेट ऑफ हेल्थ है कि हमारी, अगर हम भगवान राम की सारी प्रॉपर्टी को यूज़ करें, उसको लुटाएं, तो ये हमारी हेल्थ का सीक्रेट है। लेकिन गलती से होता क्या है कि हम गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं, जेलस करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी भगवान राम की नहीं है, ये हमारे पिता की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी रावण की है। जब हम रावण की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जब हम रावण की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो हम बीमार होंगे। और संकट इसीलिए आता है क्योंकि हम दिन रात सिर्फ रावण की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, हम अपने पिता भगवान की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करते। और जब हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं रावण की, इसलिए हमारे जीवन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं और हमें फिर दवाइयाँ खानी होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मैंने सीखी। तब मैंने अपने मन में सोचा कि मेरा तो माउंट आबू आना सफल हो गया। उसके बाद फिर मेरा लेक्चर था वहाँ पर, तो लेक्चर हुआ। लेकिन ये बात मैंने वहाँ से सीखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें जो है सुबह से लेकर शाम तक केवल भगवान राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहिए, ईश्वर की प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे पिता हैं। तो हम अपने पिता की प्रॉपर्टी यूज़ करें सिर्फ, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे और हमारे बिजनेस में भी चाट लगेगा। अभी मेरे पास में एक कपल आए, कमिश्नर थे और जो हैं उनकी वाइफ जज थी। तो वो आए मेरे पास, तो 32 टैबलेट्स वो खा रहे थे, 32 गोलियां करीब खा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई आप मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन बताएं। तो उनकी जो स्टोरी थी वो मुझे, जो उन्होंने स्टोरी मुझे बताई
उन्होंने कहा कि हमने 2-2 आरओ लगा रखे हैं, सारा खाना आरओ में बनता है, और जो सब्जियां हैं वो सारी फार्म हाउस से आती हैं, मतलब नो पेस्टिसाइड, सब फ्रेश सब्जियां हैं, मसाले हैं तो खड़े मसाले हैं। तो उनका ये कहना था कि सब कुछ साफ़ सफाई से होता है, सारा खाना आरओ में बनता है, पीने के लिए बिसलरी वाटर है, 10-10 पेटी बिसलरी वाटर की एक बार में आ जाती हैं, और उसके बाद जो है वो सब चलता है, और हर कमरे में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। कोई हम जो है नॉन वेज या ड्रिंक्स का कोई ऐसा नहीं करते। हम 2 घंटे पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फूल तोड़ के वहाँ चढ़ाते भी हैं, सब कुछ। वो अपनी 40 मिनट तक वो अपनी तारीफ करते रहे, और उन्होंने कहा कि उसके बाद भी इतनी बीमारियाँ हमारी बॉडी के अंदर हैं, इतनी बीमारियाँ हैं, और आज हमें करीब 32 टैबलेट बता रहे थे कि वो जो है खानी पड़ती है। तो उनकी वाइफ हंस के बोलने लगी कि अगर आप हमारे घर पे आओ तो आपको हमारे टाइल्स नहीं दिखाई देंगी, सब दवाई बिछी हुई दिखाई देंगी, कोई अलमारी दरवाज़ा खोलेंगे तब भी वो सब, मतलब घरों में, मतलब घर जो है पूरा नर्सिंग होम बना हुआ है। वो खुद कहते थे कि हमारी कारें घूमने के लिए नहीं हैं, वो कारें भी एम्बुलेंस बनी हुई हैं, कि हमारी कारें भी जो बड़ी से बड़ी कारें हैं सब एम्बुलेंस बनी है। उन्होंने खुद ये बात मुझे हंसते हंसते बोली। तो वो 40 मिनट तक बोलते रहे, तो वो पूछने लगे कि इसका इलाज क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि सर आपने जो किया वो ठीक है, आपने आरओ लगाए वो अच्छी बात है, आप बिसलरी पानी पीते हैं, बिसलरी वाटर पीते हैं, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक आरओ अगर आप अपने माइंड में लगा लेते या ब्रेन में लगा लेते तो आपको एक भी गोली नहीं खानी पड़ती। क्योंकि मुझे ये बताया गया था, ये उनके पर्सनल योगा टीचर ने मुझे सारी बातें बताई थी कि सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो हाउस स्टाफ है सर उन पे बहुत गुस्सा करते हैं, ड्राइवर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो ठीक है, उनका खान पीन प्योर है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, बिसलरी वाटर पानी पीना है, आरओ में खाना बन रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अब बात आरओ का पानी से नहीं है या बिसलरी वाटर पीने से नहीं है, हमारे बिसलरी थॉट्स भी होने चाहिए, बिसलरी विचार होने चाहिए। बिसलरी वाटर हम पानी पी रहे हैं लेकिन थॉट्स तो हमारे नेगेटिव्स हैं, तो वो तो जो है काम नहीं करेगा। तो उनकी मैडम कहने लगी कि सर को तो बहुत गुस्सा आता है, मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं स्टाफ के ऊपर, ड्राइवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और ऑफिस में क्या करते होंगे पता नहीं, लेकिन वो इतनी मेडिसिन खा रहे थे। उनका ये कहना था कि जब सब कुछ प्योर है, क्योंकि हर सब्जियाँ उनके फार्म हाउस से आती हैं, ठीक है, हर सब्जियां फार्म हाउस से आती हैं, तो सब कुछ जब प्योर है तो फिर मुझे इतनी बीमारी क्यों है। कि मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने कहा कि सब प्रार्थना आप जितनी मर्जी करते हैं अच्छी बात है, आप और भी प्रार्थना करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं कहा सब प्रार्थना काम करती है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, लेकिन जब दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी तो हंस के बोलने लगे कि हमारे लिए तो कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा। मैंने कहा कि तो यही मुश्किल है। मैंने कहा कि अगर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अगर आपके यहाँ जो काम वाली है, जो हाउस स्टाफ है, अगर वो अपने घर जाके बोलता है कि मेरे सर बहुत अच्छे हैं, मेरा सर बहुत ध्यान रखते हैं, ये भी प्रार्थना है, ये भी प्रेयर है, ये भी आप पे लगेगी। आपका ड्राइवर घर जाके अपनी वाइफ को बोलता है, अपनी मदर को बोलता है कि मेरे सर बहुत अच्छे हैं, मेरी मैडम बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा ये भी प्रार्थना है, ये भी प्रेयर है, ये भी आपको लगेगी, ठीक है। तो खाली प्रार्थना करने से काम नहीं होगा, या तो फिर प्रार्थना सबके लिए करो, सबके लिए करो, अपने लिए मत मांगो, सबके लिए मांगो, तो उस प्रार्थना का असर होगा। तो सॉरी तो इस बात पर जो है वो बहुत खुश हुए, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो उनके हर चीज़ समझ में आ गई कि मैंने जब कहा कि आरओ जो है यहाँ लगना चाहिए, माइंड पर आरओ लगना चाहिए, अगर विचार शुद्ध होंगे, प्योर थॉट्स होंगे तो सब कुछ ठीक होगा और उसका जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक बार मुझे कलाम साहब से मिलने का मौका मिला, मुझे उनके साथ काफ़ी देर बैठने का मौका मिला। वो बहुत इम्प्रेस हुए, बातचीत करने के बाद वो फिर एज ए चीफ गेस्ट हमारे सीमा डेंटल कॉलेज में भी आए। तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि आपकी इतनी बड़ी सीक्रेट, आपका सक्सेस का क्या मंत्र है,
ऐसे इतने आप सफल हुए, ठीक है, आप तो नॉर्मल परिवार से थे और आप परिवार से थे। तो उन्होंने मेरे को पूरा एक हेल्थ के ऊपर पूरा उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रोज़ ये प्रार्थना करके निकलते थे और वो रोज़ अपना शीशे के सामने बोलते थे। उनकी प्रेयर थी, वो कहते थे कि मैं इस प्रार्थना किए बिना कभी बाहर पैर नहीं रखता। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको जो है प्रिंट करके मैंने वहाँ अपने उसमें वहाँ लगा रखा है बाथरूम में। और वो बोलते थे रोज़ कि आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, गॉड इज़ विथ मी, आई कैन डू, एंड टुडे इज़ माई डे। ये उनकी प्रार्थना थी। इस प्रार्थना को वो रोज़ करते थे। उनका कहना था कि इससे मुझे शक्ति मिलती थी, इससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी, क्योंकि उनका एक विशेष मंत्र था कि बिलीव इन माई सेल्फ, कि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ। ये बात मुझे कलाम साहब ने ही बताई थी। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई मेरे को, कलाम साहब ने, हेल्थ को लेकर के, क्योंकि उनके फादर भी जो है मेरे ख्याल से 100 ईयर्स पूरे कर गए थे और कलाम साहब ने भी कभी ज़िंदगी में कोई ख़ास मेडिसिन नहीं खाई और वो कभी ज़्यादा करके मैंने नहीं सुना कि कभी वो बीमार पड़े, जैसा कि उन्होंने उनके सेक्रेटरी ने मुझे बताया था। तो कलाम साहब ने कहा, हेल्थ के ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ, कि जब वो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ रात को बैठ कर के डिनर कर रहे थे, तो सब लोग खाना खा रहे थे। तो जब खाना खा रहे थे तो उनके सामने एक जली हुई रोटी आ गई कलाम साहब के पिताजी के पास। कलाम साहब के पिताजी ने वो रोटी आराम से खा ली। तो बाद में माताजी को पता लगा कि जली हुई रोटी उनके पास आई, तो माताजी ने माफ़ी मांगी कि सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो कलाम साहब के पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे कोई नुकसान, मैं कोई परेशान नहीं हूँ, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और जली हुई रोटी मुझे कोई नुकसान नहीं करती। तो वो चुप हो गए। कलाम साहब ये सीन देख रहे थे। तो कलाम साहब को लगा कि आज मम्मी को डांट पड़ेगी, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। अगले दिन कलाम साहब ने अपने पिताजी को से पूछा, अलग कमरे में ले जाकर पूछा कि पिताजी क्या आपको सचमुच में जली हुई रोटी पसंद है? तो कलाम साहब का जो आंसर था वो $1 मिलियन आंसर था उसका, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कलाम साहब के फादर ने कहा कि बेटा, जली हुई रोटी से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर जले हुए शब्दों का प्रयोग मैंने माता जी के ऊपर किया होता तो उससे मेरे को बहुत नुकसान होता। ठीक है, वही एक बीमारी की जड़ है जो मेरी बॉडी के अंदर जो है, मेरे अंदर नेगेटिव हार्मोन निकलेंगे मेरी बॉडी के अंदर, जिससे मुझे नुकसान होगा और मैं तरह तरह की बीमारियों से मैं सफ़र होऊंगा। तो ये उन्होंने ये कहा कि जली हुई रोटी से मुझे नुकसान नहीं होगा, लेकिन जले हुए शब्दों का प्रयोग करके माता जी के ऊपर, उससे मुझे ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये सारी जो है चीज़ क्या है, घूम फिर करके ये सब आर्ट ऑफ लिविंग है। ये सब गुरुदेव का ही सिखाया हुआ है और ये सब, ये आर्ट ऑफ, सारी बातें, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सब घूम फिर करके आती आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ ही है, सब गुरुदेव की तरफ ही आती है। इसका जो संकेत है वो सब वही है। आर्ट ऑफ लिविंग में भी यही पूरा का पूरा सिखाया जाता है। और मैं तो 20 साल से इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं आपको एक स्टोरी और बताता हूँ कि अभी एक सत्य घटना है कि एक हमारी फैमिली में हमारे थोड़ा सा हमारी जान पहचान के थे लोग, तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनको किडनी शूट नहीं हुई, उनका काफ़ी पैसा खर्च हुआ और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया। और डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया कि आपके पास अब समय नहीं है, टाइम नहीं है, और वो डेथ बेड के ऊपर थे। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैं उनके घर पे गया और मैं देखा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसके बाद मैं उनसे मिलने के बाद मैं जब डाइनिंग रूम में बैठा तो उनकी जो वाइफ थी, मैं उनको भाभी बोलता था क्योंकि वो मेरे से उम्र में बड़े भी थे। तो मैंने भाभी से मेरी बातचीत होने लगी। तो अब भाभी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेरे हस्बैंड ने तो आज तक मक्खी मच्छर नहीं मारा, आज तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं किया,
हमेशा घर का खाना खाया, रोज़ तोरी की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, फ्रेश वेजिटेबल, सिर्फ घर का खाना, केवल घर का खाना, बाहर का कोई खाना नहीं खाया। तो उसके बाद भी मेरे हस्बैंड को इतनी खतरनाक बीमारी क्यों हुई कि आज ये डेथ बेड के ऊपर है। तो वो सारी की सारी बातें जो है मुझसे कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी, जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। उनका यही कहना था कि मेरे हस्बैंड ने आज तक जब कोई बुरा काम नहीं किया, खाने में भी जो है उन्होंने सिर्फ मेरे हाथ में खाना खाया, बाहर कभी खाना नहीं खाया, सब कुछ प्योर था, सब कुछ बढ़िया था, और जिसने आज तक मच्छर मक्खी नहीं मारा उसको ये इतनी भयंकर बीमारी क्यों हो सकती है। अब चूँकि थोड़ा बहुत मुझे उनके बारे में मालूम था, मुझे पता था, उनका ये कहना था कि जो बगल में शर्मा जी रहते हैं वो तो जो है नॉन वेज भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं और ड्रिंक भी लेते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो सब कुछ सही है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड प्योर वेजिटेरियन है और वो भी घर का खाना खाते हैं। तो सारी बातें सुनने के बाद मैंने उनके साथ विचार किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाभी अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने, क्योंकि वो समय ऐसा नहीं था इस तरह से बात करने का, लेकिन उन्होंने मेरे पे काफ़ी प्रेशर डाला कि ऐसा मेरे हस्बैंड के साथ क्यों हुआ। तो मैंने ये कहा क्योंकि उन्हीं के भाई के साथ एक प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा था। उन्होंने अपने वाइफ को और अपने बेटे को बुला के ये बोला कि मेरी इस भाई से आज से कट, और इसने जो मेरे साथ बुरा किया है अब इसके साथ भी बुरा होगा, ये सड़ के मरेगा, इसको कीड़े पड़ेंगे, इसके साथ वो होगा, इसके साथ ये होगा, उसके साथ वो होगा, और आज से ये मेरी इसके साथ बोलचाल नहीं, और ये आज से घर पे भी नहीं आएगा। तो भाभी ने बोला कि ये तो घर घर की कहानी है, तो घर घर की बात होती है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा उन्होंने ये बात कही थी, तो उसने कहा हाँ ये बात कही थी, ये फैमिली डिस्प्यूट था और भाभी जी उसको सीरियसली नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा कि ये बहुत कम बड़ी बात नहीं है। फिर वो एक हफ्ते बाद कहते हैं कि मैं तो सपना देखा कि मैं तो अगले जन्म में काला कुत्ता बन गया और मैं तो भाई को काट रहा हूँ। तो इतनी नफ़रत पैदा हो गई उनके अंदर, इस नफ़रत की वजह से ही उनकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव हार्मोन बने, जिसको हम स्टेरॉइड कहते हैं, और उसका अटैक हुआ किडनी के ऊपर। किडनी गई, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बच नहीं पाए क्योंकि थॉट चेंज नहीं हुआ उनका। किडनी चेंज हुई, किडनी नहीं लग गई, लेकिन थॉट तो चेंज नहीं हुआ। थॉट तो वही क्या वही रहा, लेकिन वो बाद में किडनी उनको शूट नहीं करी, जो भी हुआ उसके बाद खैर उनकी डेथ हो गई। तो मेरा कहना ये था, मैंने कहा भाभी जी, शर्मा जी तो जो हैं, जो पड़ोसी हैं, वो चलो नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो तो सिर्फ चिकन खा रहे हैं, वो तो केवल चिकन खा रहे हैं, लेकिन भाई साहब तो आदमी खा रहे हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति आदमी के आदमी खाए जा रहा है और एक आदमी चिकन खा रहा है, तो आदमी खाने और चिकन खाने में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा कि वो तो सिर्फ चिकन खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो सिर्फ चिकन खा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने तो आदमी के आदमी खा लिए। तो इससे जो है उनको पता लगा। मैंने कहा नहीं, यही सबसे बड़ा कारण है। उनका बेटा भी वहाँ बैठा हुआ था, तो शायद बेटा भी जो है उसने सभी सारी बातें सुनी, तो उसको भी समझ में आया कि हाँ ये कहीं ना कहीं जो है इसमें हमारी कहीं ना कहीं गलती है। ये भाभी को भी समझ में आया कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसी गलती है। मैंने कहा ये जो विचार हैं, बात खाने से नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं। हम लौकी तोरी तो खाते हैं रोज़, तो क्या हमारे लौकी तोरी के विचार हैं? अगर लौकी तोरी के जैसे विचार हैं तो डेफिनेटली उससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन हम लौकी तोरी खा रहे हैं, विचार हमारे नेगेटिव हैं, तो लौकी तोरी भी हमारा शुगर या बीपी नीचे नहीं करेगी। विचार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हैं, विचार हमारे क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मतलब मेरा ये मानना है कि माइंड इज़ एवरीथिंग। माइंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग पर हैं, अगर हम हैप्पी मोड पर हैं, हम लव मोड पर हैं, रेस्पेक्ट ग्रेटिट्यूड मोड पर हैं, लेकिन सब अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर लव, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड अगर अनकंडीशनल है तो ये देवता की तरह काम करता है। मेरा ये मानना है कि फिर कोई इस पर कोई भी शक्ति इसको यू टर्न नहीं कर सकती। हमारे जीवन में अच्छा ही होगा, हमें हेल्थ भी मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ेंगे हेल्थ के साथ।
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पूरा नर्सिंग होम बन गया, कारें हमारी जो हैं एम्बुलेंस बन गई और हाउस स्टाफ जो है वो सब नर्सिंग स्टाफ बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पैसा कमाया तो हमें उसका फ़ायदा भी हमें उठाना चाहिए। और ये थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अच्छी जगह जाएं, घूमें फिरें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को समय दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात मैं आप जो हूँ बताना चाहता हूँ। और बाकी जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो है, क्योंकि मैंने जो अभी मैं गुरुदेव के साथ जो है मैं आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में गया था बेंगलोर, मुझे दूसरी बार जाने का मौका मिला था, तो मैंने वो पूरा का पूरा सारा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हॉस्पिटल भी देखा था, मैं आयुर्वेदिक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो भी वहाँ भी जाने का मुझे मौका मिला था। और मिस्टर संदीप थे जो गुरुदेव के साथ सेक्रेटरी थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहाँ के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ पूरा घुमाया, सब मैंने देखा। मैंने वहाँ पर काफ़ी कुछ मुझे देखने को मिला कि वहाँ 50,000 आदमी एक साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हैं, 1 लाख रोटियाँ बन रही हैं ऑटोमेटिक में। इसलिए मैं वहाँ जाके बहुत प्रभावित हूँ। मेरा खुद मन करता है कि मैं हफ्ता 10 दिन वहाँ जाके रहूँ। और मैं ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लोगों को सबको एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ें, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ें, क्योंकि ये हेल्थ का ख़जाना है, हेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय निकालें, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए भी सब कुछ है, अच्छे से अच्छी वहाँ को मकान है, हर लेवल का व्यक्ति वहाँ रह सकता है। और आर्ट ऑफ लिविंग सबको ज्वाइन करना चाहिए, वो किसी भी तरीके से ज्वाइन करें, क्योंकि श्री श्री रविशंकर के जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो टीचर्स हैं, वो मुझे लगता है कि वो तो वर्ल्ड वाइड सब जगह ही हैं। और मैंने तो उनके टीचर से भी बहुत कुछ सीखा है। मैं सविता मैडम जी का भी धन्यवाद करूँगा जो देहरादून में टीचर हैं, उनसे भी मुझे जुड़ने का मौका मिला। मैंने 1 हफ्ते उन्हीं की क्लासेस अटेंड करी और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब मेरा कुल मिलाकर के मेरा ये है कि आर्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आवर लाइफ। हमें जीने के लिए अपना आर्ट ऑफ लिविंग से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। हम कैसे नेगेटिव संसार में, कैसे नेगेटिव विचारों के बीच में हम पॉजिटिव रहें, हम खुश रहें, हैप्पी रहें। क्योंकि हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो हमें हेल्थ मिलेगी, क्योंकि हैप्पीनेस ही सीक्रेट है। खुशी है, मन खुश होना चाहिए तो हेल्थ रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि अगर हमारा आर्ट ऑफ लिविंग सही है, हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारे विचारों पे हम चेक कर रहे हैं, रोज़ हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि किसी को कैंसर हो सकता है। लीवर कैंसर नहीं, बॉडी में कहीं भी कैंसर नहीं हो सकता। ये सिर्फ ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट की प्रकाष्ठा है जो हमें इस ओर ढकेलती है। और नेगेटिविटी की जो प्रकाष्ठा होती है, उसी की वजह से ही हमारी बॉडी में ट्यूमर बनता है। और इस कॉल्ड जब वो वापसी होती है, जो भी होता है, उसके बाद वो जो कैंसर डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो हमारे जो है पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पी लाइफ जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉडी में हैप्पी हार्मोन निकलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। अगर नेगेटिव हार्मोन निकलेंगे तो नेगेटिव एनर्जी को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और उसमें नेगेटिव हार्मोन आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा एक नेगेटिव हार्मोन है स्ट्रेस, जो हमारी बॉडी में बनता है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो अगर हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें, और मेन तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक यही है कि नेवर कंप्लेन, ओनली ग्रैटिट्यूड, फील ग्रैटिट्यूड, फील ग्रैटिट्यूड, फील ग्रैटिट्यूड। तो ये इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मुझे तो ये जो है बहुत अच्छा लगा, और मैं इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने लोगों ने सुना मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, sir. Now all are requested to ask questions if you want. Sir. Sir. आप कोई भी क्वेश्चन Now this is open for discussion.
राइट सर, राइट सर. Dr. Amresh, if you want to ask, you can ask. राइट सर, राइट सर. सर, डॉक्टर अमरीश, डॉक्टर अमरीश, हाँ डॉक्टर अमरीश, नमस्कार. जी सर. नमस्कार नमस्ते सर. सर. सर सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं. थैंक यू सर. सर. सर जी सर. सर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था. थैंक यू सो मच. नहीं, थैंक यू और, सर. सर मैंने सीखा है, ये- सब कुछ सीखा है, और सब गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हूँ जो भी कुछ हूँ मैं. वही चीज़ मैंने जी, आपके जी, सामने सर. रखी है, बस नया कुछ नहीं है. आप लोग तो सब जानते हैं, आप लोग तो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, ठीक है. नया कुछ नहीं है, सब मैं इसको मैंने रिपीट कर दिया है बस. और वो सब चीज़ें आप पहले से जानते थे. लव आपके पास पहले से ही है, रेस्पेक्ट पहले ही है आपके अंदर, ग्रेटिट्यूड पहले ही है, बस उसको मैनिफोल्ड करना है, ठीक है ना. लव आपके पास पहले से ही है, रेस्पेक्ट सर. आप पहले से ही है, ग्रेटिट्यूड आपके पास पहले से ही है. तो मेरा तो ये मानना है कि लव, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड जिसके पास है वो सबसे अमीर आदमी है इस पृथ्वी का, ठीक है. ब्रह्मा विष्णु महेश यही है बस, जिसके पास ही है वही तरक्की करेगा, वही आगे बढ़ेगा. गिव रेस्पेक्ट टू ऑल, सबको रेस्पेक्ट दो अनकंडीशनली. गिव लव अनकंडीशनली. लव अनकंडीशनल होना चाहिए, चाहे वो सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे हाउस कीपिंग स्टाफ हो, कोई भी हो. रेस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो मैंने बहुत बड़े बड़े अमीरों, जितने भी लोगों से मैंने जो सीखा है, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, उनका एक ही रूल है, गिव रेस्पेक्ट टू ऑल. पूछे सर. जी सर. सर डॉक्टर अमरीश, जी सर. जी सर. सर पूछिए सर. हाँ. सर क्वेश्चन यही था कि आजकल जो सस्पेक्टेड केसेस है सर, हाँ, अभी ज्यादातर क्लिनिक्स में हो गए या फिर हॉस्पिटल्स में जब भी पेशेंट आते हैं, कभी कभार जो हम रूटीन टेस्ट कराते हैं, रूटीन एग्जामिनेशंस कराते हैं, तो वहां पर कभी कभार ऐसे दिमाग में आ जाता है सर कि दैट माइट बी a case might be, it will be suspected case of any particular carcinoma, but वहां पर क्या होता है सर, कैर्सिनोमा बोल के इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से भी पहले भी एक बार सोचना पड़ता है वहां पे, या फिर जो रूटीन टेस्ट करने के लिए बोलने से पहले भी एक बार सोचना पड़ता है. सो सर, आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर कर सकते हैं कि यूजुअली हम इस चीज को प्राइमरी लेवल पे कैसे डिटेक्ट करें, या अपने ही लेवल पे कैसे एक बार क्रॉस वेरीफाई करें, ताकि कौन से केसेस को हम ज्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, या किस केसेस को हम अपने लेवल पर रख के कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशंस पे रख पाएंगे टिल गेटिंग सम कंक्लूजन. तो सर इसके ऊपर कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो सर एक बार शेयर कीजिए. सर Thank you. आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कि मैं तो सर अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि होता क्या है कि कोई भी सिम्टम्स बॉडी के अंदर है, जब वो किसी भी मेडिसिन पे से ठीक नहीं हो रहा होता है, और वो नहीं होता है तो डॉक्टर के सेकंड थॉट यही आता है कि कैंसर हो सकता है. लेकिन वो पेशेंट को डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो यही बोलेंगे कि ठीक है, हम इस पर टेस्ट करते हैं, हम इसमें MRI करेंगे, हम पेट स्कैन करेंगे, और हम जो है इसकी बायोप्सी करेंगे. लेकिन होता क्या है, लास्ट में रिपोर्ट वही आएगी कि कैंसर है, चाहे वो किसी भी टाइप का कैंसर हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज. लेकिन लास्ट में जब कटपट होता है, जो भी है, मैंने ये देखा, वो मैक्सिमम जितने भी टेस्ट होंगे, बाद में ये कैंसर आता ही है कि ये कैंसर है. अब जब पेशेंट्स को ये बताया जाता है कि उसको कैंसर है, तो उसके अंदर एक फियर आ जाता है कि ये तो बिल्कुल, मतलब उसको मौत दिखाई देती है, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है. 98% पेशेंट टूट चुके होते हैं, 2% होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, लेकिन 98% पेशेंट तो बहुत टूट जाते हैं. और उसके बाद फिर क्या होता है, उनका फिर कीमो होता है, रेडिएशन होता है, कीमो है, रेडिएशंस हैं, ये सब चलता रहता है. लेकिन जो मैंने देखा है, जो इतने पेशेंट हमारे पास में आते हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो सब जगह से आते हैं, वर्ल्ड से आते हैं हमारे पास कैंसर पेशेंट. लेकिन जो हम करते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है. अब वो उसको कैंसर है, अब
ठीक है, रिपोर्ट ने तो ये कह दिया कि उसको कैंसर है, और वो कैंसर है, हम उसका एक तो जो उसका सिम्टोमेटिक है, हम तो उसके जो सिम्टोमेटिक जो है हम उसके सिम्टम्स पे काम करते हैं, हमसे सब क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज हम करते हैं, उनके सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो करते हैं, हम लोग करते हैं उसकी काउंसलिंग। हम क्या करते हैं, हम उसके ब्रेन की काउंसलिंग करते हैं, हम मेंटल डिटॉक्स करते हैं, हम उसको इतना कहना चाहिए मोटिवेट कर देते हैं, उसको इतना इंस्पायर कर देते हैं कि वो 200% क्योर हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है और वो बिल्कुल सही हो सकता है। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि जो है चलो किसी ने तो कहा Recording has stopped. कि जो है मैं ठीक हो सकता हूँ। तो जब उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि मैं ठीक हो सकता हूँ, ठीक है, जब मैं ठीक हो सकता हूँ, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब उसके अंदर ये बार बार विश्वास हो जाता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, उसके बाद हम उसको प्रेयर के बारे में बताते हैं कि भाई लव पर प्रेयर करिए, ग्रेटिट्यूड पे प्रेयर करिए, सबका धन्यवाद, सबको प्यार करिए, अपने आप को प्यार करिए, पूरे ब्रह्मांड को प्यार करिए, और अपने रिलेटिव्स को प्यार करिए, फ्रेंड्स को प्यार करिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनिमीज़ को प्यार करिए। जहाँ से कैंसर आया, क्वेश्चन है ना, कैंसर आया कहाँ से, उस व्यक्ति को कैंसर हुआ क्यों, कैंसर का कारण क्या था, उसी को कैंसर क्यों हुआ, ठीक है। मैं ये नहीं होता है खाने पीने से कैंसर हो गया, इट्स नॉट, कुछ हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो सकती है, लेकिन सारा ये नहीं कि खाने पीने से उसे कैंसर हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि वो उसके थॉट्स थे, ओवर थिंकिंग थी, ओवर नेगेटिविटी थी, वो किसी के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो जो है वो होते तो 4-5 ही लोग हैं, तो उसमें जो उसका थिंकिंग है उसको चेंज करने के लिए वो पॉजिटिव सोचे, वो अपने दुश्मनों को भी लव दे, दुश्मनों को भी ग्रेटिट्यूड करे, उनको प्यार करे, उनको 200 गुना ज़्यादा प्यार करे, उनको उस थॉट से निकाल दे, उस विचारों से उसको बाहर निकाल दे। तो जब उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और जब वो अनकंडीशनल लव से भर जाता है, और वो जब वो अनकंडीशनल लव देता है सबको, ठीक है, तो वो उससे जो है वो ठीक होने लगता है, उसकी तबीयत ठीक होने लगती है, उसकी जो है वो बिल्कुल लगता ही नहीं है, 10-12 दिन बाद वो ऐसा लगता है कि उसे कोई कह ही नहीं सकता उसको देख करके कि उसे कैंसर है, या उसको वो ठीक नहीं हुआ, वो बिल्कुल अपने आप को हेल्थी समझता है, अपने आप को क्योंकि वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसका जो है भूख भी अच्छी लग रही है, उसको जो है उसका मोशन भी सब सही है, आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ गया, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया, वो घूम रहा है, फिर रहा है, हर तरह का खाना खा रहा है, सब कुछ है, तो वो अपने आप को फील गुड है, उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो मेरा तो ये जो मेरा ये कहना है कि अगर हम सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और उसकी काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसको कैंसर हुआ क्यों, ठीक है। सवाल ये है कि उसको कारण क्या है कैंसर का। अब आप डॉक्टर साहब हैं, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप खुद ही सोचिए कि कैंसर को क्योर करने वाली कौन सी मेडिसिन है, हम किस मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल तो है, कंट्रोल तो हम कर सकते हैं मेडिसिन से, लेकिन क्योर तो मुझे लगता नहीं क्योर हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी क्योर नहीं हो रहा है, डायबिटीज़ भी क्योर नहीं हो रही, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग से तो क्योर हो रहा है ना। आर्ट ऑफ लिविंग करके तो ब्लड प्रेशर नीचे आ ही जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग से तो शुगर भी नीचे आई जाती है, तो आर्ट ऑफ लिविंग से तो बहुत सारी क्योरेबल डिजीज़ हैं जो नीचे आती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें शांति मिलती है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमें दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाया जाता है, ठीक है। और वैसे भी जब हम प्यार से अपने आप को भर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड से अपने आप को भर लेते हैं, फिर हमारे दुश्मन रहते ही कहाँ हैं, हमारे तो कोई दुश्मन होते ही नहीं है फिर, ठीक है। वो तो हम नाप तोल करते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, लेकिन जब हम ही खुद अच्छे बन जाते हैं तो फिर हमारा संसार ही चेंज हो जाता है, ठीक है। जो भगवान बुद्ध की भी कोट यही है, व्हाट वी थिंक वी बिकम। महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि जो हम संसार में देखना चाहते हैं वो पहले हम अपने आप में देखें, अपने आप को चेंज करें, हम चेंज होंगे तो हमारा वर्ल्ड चेंज होगा, हमारा संसार चेंज होगा, ठीक है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की फर्स्ट कोट यही है, यही स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप 2 भगवान पे विश्वास करो, चाहे 1 करोड़ भगवान पे विश्वास करो, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे
तब तक सफलता हाथ नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ताकत देता है कि बिलीव इन माई सेल्फ। तो बिलीव इन माई सेल्फ, तो ये बहुत बड़ी बहुत ताकत है। कॉन्फिडेंस हमारे पास है, आत्मविश्वास हमारे पास है, तो आत्मविश्वास की ताकत से हम सब बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत से हम हेल्थी रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हैप्पी हार्मोन बहुत ज़रूरी है। अगर हम लव मोड पर हैं, हार्मोनी मोड पर हैं, हम कंपैशन हैं, ग्रेटिट्यूड मोड पर हैं, ठीक है, हम स्माइल कर रहे हैं, लाभ कर रहे हैं, तो नेचुरली है कि हमारी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन निकलेगा। एंडोर्फिन निकलेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमें कोई भी बीमारी जल्दी से पकड़ेगी नहीं आएगी। नॉट ओनली कैंसर, और भी तो बहुत सारी बीमारी हैं, हम फिलहाल उससे बचे ही रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक आई होप यू आर सेटिस्फाइड। यू। जी सर, थैंक यू। हाँ, आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब मेरा कुल मिलाकर के आज जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बेसिकली चीज़ तो वही है ना जो गुरुदेव ने सिखाया है, चीज़ तो वही है। ठीक है, क्योंकि किसी पेशेंट को कैंसर हुआ तो कैंसर का कारण क्या था, उसे कैंसर हुआ क्यों। ठीक है, तो हमें नेचुरली सर एक्चुअली ये एक चीज होता है कि वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक एसओपी टिल डेट और वैलिडेटेड एसओपी जिसको हम कह सकते हैं टू ट्रीट द केसेस लाइक कैंसर। जी तो सर ये पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि जो फील्ड में जो एक्सपर्ट काम करते हैं उनका एक सेल्फ डेवलप या मेंटेन्ड एसओपी वो फॉलो करते हैं। So I was little bit curious to know that part कि अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या एसओपी आप एक जो फॉलो करते होंगे अपने पेशेंट्स के लिए, ऐसा कुछ तो सर जो हमें इन जनरल प्रैक्टिस में थोड़ा हेल्पफुल हो सके। बिकॉज सर आजकल जो है बाकी टेस्ट वगैरह तो ऐसे हो गए कि गूगल में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपने किसी को CA 125 लिख भी दिया तो पेशेंट जाके अगले ही दिन गूगल करता है और फिर आगे पूछने लगता है कि सर व्हाई आई नीड दिस टेस्ट। तो डाइट रेस्ट्रिक्शंस तो एज ए पार्ट हम यूजुअली हर डिजीज के साथ देते ही हैं। तो फिर भी कुछ अगर ऐसे बीइंग ए ऑन्कोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा कुछ एसओपी वगैरह है तो सर कुछ शेयर करना चाहेंगे किसी केस के बारे में, तो वो थोड़ा और इजी हो जाएगा थोड़ा समझने में। मैं भी और बच्चे भी यहाँ पे बहुत सारे ज्वाइन किए हैं। थैंक यू सो मच। आपके एसओपी से क्या मतलब है आपका, अब मुझे पूरा बताएं। सर जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो वहाँ पे आता है कोई भी पेशेंट आता है तो पहला वो उसके दोष दूसरे की अवस्था देख लेते हैं या फिर डिजीज के स्टेज जिसको बोलते हैं, ये इनिशियल लेवल पे है या फिर कौन से स्टेज पे अभी वो डिजीज है। फिर अकॉर्डिंगली हम एक जैसे प्लान करने स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा आप ये डाइट हो गया या फिर रेजिमेन हो गया, मेडिसिन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया पर्टिकुलरली, और इतने दिन के लिए इतने महीनों के लिए एक एसओपी रहता है या कुछ प्रोटोकॉल्स को लेके प्रोसीजर्स को लेके। इफ समथिंग इज सर पर्टिकुलर एनी केसेस और एनी एग्जांपल्स सर ऐसा कुछ तो। देखिए हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो हमारे पास आते हैं वो 3rd स्टेज 4th स्टेज वाले आते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में 1st स्टेज 2nd स्टेज वाले तो आएंगे ही नहीं। क्योंकि जब उनको पता लगता है कि उनको कैंसर है तो नेचुरली वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। जब उनको मना कर दिया जाता है कि अब आगे कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जब वो मना कर देते हैं कि आगे अब कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, अब तो आपके पास कुछ दिन रह गए, महीने रह गए, ठीक है, तो आगे अब हम कुछ कर नहीं सकते, इसको घर ले जाओ, अपना प्रार्थना करो और जो है वो मतलब जो है उनके लक पर ही उनको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास तो 3rd स्टेज 4th स्टेज और लास्ट स्टेज वाले ही ज़्यादा पेशेंट हमारे पास में आते हैं। और उसमें जो है हम लोग मेन तो जो मैंने बताया कि मेन तो हम उनकी काउंसलिंग ही करते हैं। काउंसलिंग पे हम बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव हो रहा है, पेशेंट पॉजिटिव हो रहा है, पेशेंट पॉजिटिव हो रहा है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग पे हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं कि हम उसको किसी तरीके से पॉजिटिव ले आएँ। हम उसे सिखा दें कि लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेट से हट जाओ, हेट से बिल्कुल हट जाओ, लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अनकंडीशनल लव है पूरी दुनिया के लिए तो जीत आपकी 200% होगी।
आपको कैंसर से हमेशा छुटकारा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मन में हेटेड है तो फिर इन्वाइटिंग कैंसर, फिर तो डिजीज बढ़ेगी। तो हमें इसको हेट से निकाल करके लव पर डालना है, ठीक है। नंबर 1 ये चीज़ है। दूसरा ये होता है कि हमारा एक है कि हमने एक मुट्ठी जो है ये मूंगफली होती है उसको रात को भिगो देते हैं और उसको जो है सुबह मिक्सी में चला करके और उसमें 2 केले डालते हैं और 1 चम्मच हम शहद डालते हैं और उसे मिक्सी में चला करके उसकी स्मूथी बनाते हैं पूरी, और वो हम उनको जो है सुबह खाली पेट पिलाते हैं। तो ये हमारा जो है सुबह का एक तरह से नाश्ता होता है। उसके बाद उनको फ्रेश फ्रूट्स हम खिलाते हैं, जितने फ्रूट्स वो खाना चाहते हैं खा सकते हैं। ऐसे जो है ये जो है मतलब सब हमारा मतलब खाने पीने का जो है वो इसी तरीके से हल्का खाना ही हम खिलाते हैं। बाकी नेचुरोपैथी के हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उनको नेचुरोपैथी टाइप की मसाज उनको दी जाती हैं। हम पेशेंट को 4 से 5 घंटे बिजी रखते हैं ताकि वो उसको रिलैक्सेशन मिले, उसको आराम मिले और उसको मज़ा आए। 2 घंटे मैंने बताया था कि 2 घंटे हम सुबह उनको खुले आसमान में घुमाते हैं, खुले आसमान में हम एक्सरसाइज कराते हैं, खुले आसमान में मेडिटेशन कराते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आसमान भी हमारी बॉडी को हील करता है। मैं इस बात पे बहुत विश्वास करता हूँ कि खुला आसमान भी हमारी बॉडी को हील करता है। शाम को भी हम खुले आसमान में ही उनको घुमाना फिराना, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको टाइम देते हैं, उनको पूरा व्यस्त रखते हैं। कोई भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त पॉजिटिव रहे और लव मोड में रहे, हारमोनी मोड पे रहे। हम इस तरह का ही पूरा उनका ध्यान रखते हैं। और बाकी वो जो डाइट्स में बहुत ज़्यादा हम जो ज़रूरत है उतना ही परहेज कराते हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी फ्रूट्स तो खा ही सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए इतना आप जानते हैं कि जितना ऑक्सीजन जाएगा, जितना नाइट्रिक ऑक्साइड जाएगा, तो ऑक्सीजन के सामने जो है जो ट्यूमर है वो मतलब ख़त्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के सामने भी ट्यूमर ख़त्म होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो आप पहले से जानते हैं, आप तो ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। लेकिन बस मैंने तो एक आप आर्ट ऑफ लिविंग का एक एक्सट्रैक्ट बताया कि ये लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर पेशेंट्स का जब तक हम आत्मविश्वास बढ़ाएं और उसके अंदर एक जीने की इच्छा हम बढ़ाएं कि आपको जीना है, हमें आपकी ज़रूरत है, आप ठीक हो सकते हैं, आप क्योर हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसे इंस्पायर करना है, हमको मोटिवेट करना है। तो उससे जो है उनके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ताकत आ जाती है, उनकी आत्मा डांस करती है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम आई लव यू बोलते हैं या थैंक यू बोलते हैं, हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, तो बच्चों को भी हम प्यार करते हैं, तो हमारी आत्मा डांस करती है, हमारी आत्मा को अमृत मिलता है। लेकिन हम किसी को हेट करते हैं, अगर हम हेट यू बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा को जहर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी आत्मा को बार बार जहर देंगे तो फिर हमें तो बहुत नुकसान होगा ही ना, ठीक है। कोई भी नेचुरली फिर कैंसर भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो एक तरफ लव है और एक दूसरी तरफ हेट है। तो लव, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, ये सब लव के ही पार्ट्स हैं। तो लव, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज ऑल आर द इसे मतलब आई होप कि इसे मेडिसिन मेड बाय गॉड। तो आप समझ गए, लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लव इज द मोस्ट हाईएस्ट एंड पावरफुल एनर्जी इन द होल यूनिवर्स। जिसके पास लव है वो बीमार हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस अनकंडीशनल लव होना चाहिए, लव टू ऑल, सबके पास लव हो। कोई सीईओ, उसको भी रेस्पेक्ट करना है, कोई जूनियर स्टाफ है उसको भी रेस्पेक्ट करना है, हाउसकीपिंग स्टाफ है हमें उसको भी रेस्पेक्ट करना है। हम भूल जाते हैं। And always feel gratitude. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Excellent views and excellent. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all. Experiences you have shared with us. Any other persons, if you want to ask question, you can ask. So, पूछिए any question. Today's main thing we learn is every disease are because of our mansikta. Yes, So sir. positive attitude, positive thoughts we have to maintain Yes, sir. if you want to maintain a disciplined life and a diseaseless life. Right, sir.
सर मैं Otherwise- 2 लाइन में सर मैं 2 लाइन में एक बात कह रहा हूँ कि हम खाने Please. पीने से इतने बीमार नहीं पड़ते जितना हम गलत विचार से बीमार पड़ते हैं। हमारे थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वरना हर आदमी आज फ्रेश वेजिटेबल ले रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, बिसलरी वाटर पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तो हम बीमार हैं। देखिए हम चूंकि हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम थॉट्स को चेक नहीं कर रहे हैं, तो विचार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, देखिए हम क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे विचार क्या हैं, क्या विचार हैं हमारे, क्या हम सोचते रहते हैं, अंदर हमारे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हम खाने पीने से इतना बीमार नहीं पड़ते, हमें कोई चीज़ अंदर ही अंदर खा रही है, कौन सी चीज़ अंदर अंदर खा रही है उससे हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोला? Yes, sir. Any other person, some Dr. Renu or someone, or if you want to ask, you can ask, no problem. You can unmute yourself. Any student, if you want to ask, yes, Yes, sir. please. Sir, नमस्ते सर। हाँ रेनू, हाँ जी। या ग्रेट, सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना है। पूछिए। सर क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ और मैं भी ट्रीटमेंट करती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जितने भी डिजीजेज हैं, चाहे कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो या कोई भी डिजीज है, तो क्या उनका रूट कॉज नेगेटिव थॉट्स है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रेनू मैम, आपने ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखिए 90% तो हमारी जो जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज़ हैं वो हमारे थॉट्स के ऊपर ही आधारित हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना सही नहीं होना चाहिए, खाना सही होना चाहिए, खाना तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। जो खाने हैं जैसे नेचुरली जो सलाद हैं वो हमें फ़ायदे करेंगे, फ्रूट्स हैं वो हमें फ़ायदे करेंगे, ऑयल कम होना चाहिए खाने के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें फ़ायदा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें फ़ायदा तो करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश जितनी भी ये चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं फ़ायदा हमें करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि फ्रेश वेजिटेबल के साथ साथ हमारे फ्रेश थॉट होने चाहिए, विचार हमारे प्योर होने चाहिए, हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हम स्ट्रेस से मतलब स्ट्रेस में अगर हम रहेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर हम स्ट्रेस हैं, हमारे पास टेंशन है, हमारे पास कंप्लेंट्स हैं और हम फिर फ्रेश वेजिटेबल खा रहे हैं, हम फ्रेश चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो फिर बीपी शुगर तो आएगा ही ना, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम मॉर्निंग वॉक करें या हम कितना अच्छा भी खाना खा लें, बॉयल वेजिटेबल खाना खा लें, कुछ भी खा लें, ठीक है, उससे कंट्रोल तो होगा ही, नेचुरली उससे चीज़ों से कंट्रोल होता है। अगर हम हरी सब्जियां खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, उनसे कंट्रोल होगा, ठीक है। लेकिन क्योर नहीं होगा ना, क्योर तो आर्ट ऑफ लिविंग से होगा ना। अगर हमारा थॉट प्योर हो गया, अगर हमारा थॉट प्योर है, हमारा थिंकिंग प्योर है, हमारी सोच प्योर है, तो वो 200% काम करेगा। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू sir, your nice elaboration. थैंक यू सर, सेम हियर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको ऋषिकेश, ठीक है सर, और हम आपको अपना सेंटर if time दिखाएंगे। permits, definitely I'll come to you. सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Now I request Dr. Amreshkar to give vote of thanks. So, Jai Gurudev, good afternoon. Respected Dr. Rajesh Kumar Gupta sir, Professor Durga Prasad Das sir, respected Dean sir, other faculties and dear students. So, I extend my thanks, my sincere thanks and my gratitude and respect to Dr. Rajesh Kumar Gupta sir for enlightening us on this serious issue in a very unique manner
and sir, no doubt he's very confident and keen about all his protocols and the way he's working, particularly which is very uh, least considered while in the clinical practice. That is the Sattva Chikitsa, what we called in the Ayurveda. So thank you so much, sir, for highlighting this way of approach for treating this cancer-like cases and giving a really a new way to the patients and to the particular the cancer patients. And along with them, definitely this thoughts will be carried out to their relatives, to their family members also. So it will be a great help for the other people in the society also, to not only just to cure the disease but to prevent the disease as well. So with this, once again I thank you, sir, and thank you, sir, for giving this opportunity to be a part of this program. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बोला, सबको इतना अच्छा मोटिवेट किया, Thank you, इसके लिए thank बहुत you. बहुत धन्यवाद सर. इट Thank वाज you. अ वेरी गुड टॉक सर. थैंक यू. थैंक यू. आपका गुड नेम? मैं अनुभव, डॉक्टर अनुभव बोल रही हूँ. डॉक्टर? अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर अनुभा अग्रवाल. थैंक यू. थैंक यू. डॉक्टर अनुभा. जी सर. जी सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.